I'm going to tell you 4 ways how to study Materia Medica, and we are going to start right now. Hello everyone, my name is Dr. Taha Khan, and if you have been preparing for any homeopathy competitive exams like AIAPGET, UPSC or state PSC, then this video is going to help you a lot. In this video, I'll tell you everything about Materia Medica, like what are the books that you need to study for Materia Medica, what are the symptoms that you need to study for your exams, how many hours to study Materia Medica, when to start your preparation for Materia Medica, and few awesome ways to study Materia Medica. I have been told many times by many students how difficult they find to memorize and retain the symptoms of Materia Medica in their final exams. I mean, back in the days when I was preparing for my exam, I used to find Materia Medica extremely difficult. Like मैं जितने भी ध्यान से, जितने भी मेहनत से Materia Medica के symptoms याद करता था, I kept forgetting those symptoms at the end of the week, and I know you are also facing the same problem. So without any delay, let's jump right into it. Number 1, what books to study for Materia Medica? First of all, you need to understand what are the different books in Materia Medica from where you are likely to get an MCQ from. Like there is Allen's Keynote, there is Borik's Materia Medica, and these two are the basic books. Apart from these two, there is also Boger is there, Nash is there, Tyler is there, Kent is there, Herring is there, and the list goes on. So what do? You stick to the basics. आपको सिर्फ एलेंस और बोरिक ही पढ़ना है. अब कोई भी सिम्टम जो एलन और बोरिक के बाहर आपको मिलता है, आपको क्या करना है कि एक A4 साइज का जो पेपर होता है, प्रिंटिंग वाला पेपर, आपको उसमें लेना है और वो सारे सिम्टम्स को जॉट डाउन करना शुरू कर देना है. सिम्टम्स लिखे, उसके बगल में मेडिसिन लिखा, अगर मन करे तो कहाँ से किस किताब से रेफरेंस है वो लिख दिया कि ये सिम्टम्स इस मेडिसिन में है नैश से, ये सिम्टम्स इस मेडिसिन से है बोगर से. तो ऐसे करके आपको A4 साइज का पेपर को फिलअप करना है. अब ये सिम्टम्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे कोई भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, या कोई एमसीक्यू मटेरिया मीडिया के एमसीक्यू टेक्स्ट बुक को आप फॉलो कर रहे हो, वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हो, वहाँ पे आपको मिलेंगे. कोचिंग में आपको मिलेंगे, कोचिंग में टेस्ट आप दे रहे हो तो वहाँ पे कुछ सिम्टम्स आपको मिलेंगे जो एलन और बोरिक के बाहर है. तो ये सारे सिम्टम्स को आपको एक जगह ये A4 साइज के पेपर में लिखते चले जाना है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे करोगे तो एक A4 साइज का जो पेपर होता है फ्रंट एंड बैक आप फिल नहीं कर पाओगे. सो आपको मटेरिया मेडिका कहाँ से पढ़ना है? एक एलेंस की नोट हो गया, एक बोरिक हो गया, और एक ये पेपर जो आपने बनाया है. नंबर 2, what are the symptoms you need to study in Materia Medica? इसमें सबसे पहले आता है one line symptoms. Now when you are studying Allen's keynote, you will see that these one line symptoms are scattered all over the book. These are generally small symptoms and third grade symptoms. जैसे कि I will give you example. Very lame and sore all over. The symptom is present in abrotenum. All irritating things immediately produce cough. The symptom is present in alumina. I'll give you one more example. Complaints occurring in hot weather. The symptom is present in calibi. So you need to find out these symptoms, mark in your book, and you need to study these symptoms with utmost importance, because ये symptoms आपके exam के purpose से बहुत important है. Number 2, symptom changes after a semicolon. Now, while you are studying Allen's keynote, you will see that there are many semicolons present in between the symptoms. Now, what does this signify? It signifies that a symptom change after a semicolon. I'll give you a few examples. Twitching of fingers, present in calibrome. Now, when you open calibrome, you will see that twitching of fingers is a symptom among a group of symptoms. I'll give you another example. Epilepsy from loss of vital fluids. The medicine is lachesis. Now, when you open lachesis, you will see under epilepsy that there are a lot of symptoms under which from loss of vital fluid is a symptom. So, you need to understand these kind of combinations might also come in your exams. I'm going to ask you few more similar symptoms, and I want you to tell me the medicine in the comments below. Like conjunctiva, yellow or orange color. Okay. Number 2, burning generally in diseases of nervous origin. Number 3, diarrhea from excessive smoking. Number 3, symptoms in bracket. Now, when you are studying Allen's keynote, you will see that beside a symptom, there are few other medicines that are also mentioned within the bracket. What does this signify? It signifies that the same symptom is also present in those medicines. I'll give you few examples, like itching chilblains. The medicine present under abrotenum, and inside the bracket you will also see a medicine which is agaricus. So if you get this symptom in your exam, like itching chilblains, option A abrotenum, option B agaricus, option C both, and option D none.
So the correct answer will be both. I'll give you another example. What's on the palm of hand? What's on the palm of hand? The symptom is present under anacardium, and inside bracket there is also another medicine which is natramine. So the answer will again be both. Here's a quick tip. If you get a symptom in your exam and in the option there are more than 1 or 2 medicines, now you know that this symptom was present under this medicine, but you're not very much sure that the other medicine was also present in the bracket. So what do? You go with both, because generally the answer is both, but not necessarily. Number 4, relations. What do you need to study under relations? You need to study complementary, inimical, antidote, follows well, should not be given after, dosage if given any, chronic of, acute of, analogues, aggravation, amelioration. These are the things that you need to study under relations. Now the important thing to notice here is that if there is a sentence or a symptom mentioned under relations, then that is of more importance. I'll give you one example. Under relation of nitric acid, there is a symptom that is mentioned about arsenic that resembles arsenic in morbid fear of cholera. That is of more importance. Then there is another symptom under nitric acid which is relieves ailments resulting from abuse of ... The medicine is digitalis. So these are the symptoms that are of more importance under relations. From Borix Materia Medica, you only need to study those medicines that you have already studied in Allen's keynote 1. Second, few other medicines that are not present in Allen's keynote, but they are generally used in our daily OPDs. And third, you need to forget about rest of the medicines. And among symptoms, you only need to remember those symptoms that are mentioned in italics. That's all. Number 3. How many hours to study Materia Medica? You see, Materia Medica is not a type of subject which can ever be completed. You cannot sit for a month or 2 or 3 and say that my entire syllabus of Materia Medica is complete. No. What I recommend you to do is invest little times every day. Study for 1 or 2 hours every day throughout your preparatory period, and I think this should be sufficient for Materia Medica. When to start studying Materia Medica for your PG exams? While you are in your first year, second year, third year, fourth year, it's better to concentrate on your university exams. And once you have passed your final BHMS exam, that is the time when you need to start solving MCQs on Materia Medica. Now, few awesome ways to study Materia Medica. First of all, you need to understand कि ये आपका BHMS एग्जाम नहीं है. यहाँ पे कोई एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा है कि हेडेक ऑफ आर्सेनिक बताओ या मेंटल सिम्टम्स ऑफ जिंकम बताओ. नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर्स भी दिया हुआ है. आपको सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है कि ये सिम्टम तो इस मेडिसिन में प्रेजेंट है. आपको पूरा सिम्टम्स याद भी नहीं करना है. जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. वन ऑफ आवर बेस्ट एंटीडोट्स फॉर लेड पॉइजनिंग. द सिम्टम इज प्रेजेंट अंडर पेट्रोलियम. लेकिन अगर सिम्टम आता है वन ऑफ आवर चीफ एंटीडोट्स फॉर लेड पॉइजनिंग, देन द मेडिसिन इज एलुमिना. अगर बेस्ट है तो पेट्रोलियम है, अगर चीफ एंटीडोट का बात कर रहा है देन दैट इज एलुमिना. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स. ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस में है और कहीं नहीं है. ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स जहां दिखा आंसर विल ऑलवेज बी फॉस्फोरस. इसी के रिलेटेड एविल फोरबोर्डिंग्स. एविल फोरबोर्डिंग्स जहां भी दिखा द आंसर इज सोराइनम. और कुछ आपको सिम्टम याद ही नहीं रखना, उसके आगे पीछे कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स कीवर्ड याद रखो. जहां भी सिम्टम्स में ये दिखा वो सिम्टम फॉस्फोरस का ही होगा. इविल फोरबोर्डिंग्स कहीं भी दिखा वो सिम्टम सोराइनम में ही होगा. अनदर एग्जांपल. लाइक ए स्कम ऑन ए फ्रॉग पॉन्ड. लाइक ए स्कम ऑन ए फ्रॉग पॉन्ड. ये सिम्टम कहाँ प्रेजेंट है? ये सिम्टम प्रेजेंट है मैककाब में. लेकिन अगर ऑन के जगह ऑफ रहता है, लाइक ए स्कम ऑफ ए फ्रॉग पॉन्ड, देन दैट सिम्टम is present under sanicula. Okay, another example. Can swallow liquids only. ये सिम्टम कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट अंडर बैप्टीशिया. लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सिम्टम है कि इनएबिलिटी टू स्वॉलो एनीथिंग बट लिक्विड्स, एंड द मेडिसिन इज बराइटाकाम. ओके, सो यू आर गेटिंग द ड्रिल. आई विल गिव यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. हेडेक वन साइडेड एज फ्रॉम अ नेल ड्रिवन इनटू द ब्रेन. The symptom is present under cophia. Okay, एक आप और एग्जाम्पल सुनो. Headache as if a nail had been driven into parietal bone. The medicine is thuja. इसी से रिलेटेड अब और सुनो. Headache as if a nail was driven out through the side. The medicine is ignatia. So अगर headache सिर्फ हुआ as if a nail driven,
देन दैट इज कॉफिया. अगर पैराइटल बोन की बात कर रहे हैं देन द मेडिसिन इज थूजा. एंड अगर नेल ड्रिवन इन से आउट हो गया देन द मेडिसिन इज इग्नेशिया. ऐसे करके याद रखना है, जस्ट कीवर्ड्स पे याद रखना है पूरे सिम्टम्स को, मेडिसिन को. अनदर एग्जाम्पल, व्हाट्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड, द मेडिसिन इज एनाकार्डियम. ब्रैकेट में एक और मेडिसिन है, वो है नैट्रम्यूर. नैट्रम्यूर व्हेन यू ओपन, उसके ब्रैकेट में एक और मेडिसिन है विच इज नैट्रम काब. उसके साथ एक और सिम्टम है विच इज सोर टू टच. तो अगर व्हाट्स ऑन पाम ऑफ हैंड हुआ और अगर सोर हुआ टू टच देन द मेडिसिन इज नैट्रम काब. एंड एक और मेडिसिन है रूटा. सो व्हाट्स अगर पाम ऑफ हैंड में होता है तो व्हाट आर द मेडिसिन? वन इज एनाकार्डियम, नैट्रम्यूर, नैट्रम काब एंड रूटा. एंड अगर व्हाट्स ऑन द बैक ऑफ हैंड होता है then there is one medicine which is Dalkamara. So in this way you need to study entire Materia Medica in just keywords. And now the 4 ways. Number 1, alphabetical. What you can do, you can start from abrotenum and go up to the last medicine like zincum. आप जब abrotenum पढ़ रहे हो तो यहीं पे you write down everything related to abrotenum. Like आप abrotenum Allen's keynote से पढ़ रहे हो, आप यहीं पे family, common name, parts used, क्लास, प्रूवर, सब चीज़ यहीं पे लिख के यहीं पे पढ़ लो. ऐसे करते 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 ए बी सी डी करते करते अल्फाबेटिकली आप जाओगे अप टू जिंकम. सो दिस इज वन वे हाउ यू कैन स्टडी मटेरिया मेडिका. नंबर 2, टाइटल और अंडर कैटेगरी. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप कैटेगराइज कर दे रहे हो सारे सिम्टम्स को अंडर ए टाइटल. लाइक फॉर एग्जाम्पल हेडेक. हेडेक के अंदर आप सारा मेडिसिन पढ़ ले रहे हो, सारे सिम्टम्स ऑफ हेडेक पढ़ रहे हो, वो सारे सिम्टम्स कहाँ कहाँ मेडिसिन में है एक कंपैरिजन करके आप पढ़ ले रहे हो. हेडेक हो गया, इनिमिकल्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रूमेटिज्म हो गया, ये सब टाइटल वाइज करके, सिस्टम वाइज करके आप सारे, मेंटल हो गया, ऐसे करके आप सारे मेडिसिन को पढ़ रहे हो. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. जैसे इचिंग चिलब्लेंस. इचिंग चिलब्लेंस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. इचिंग चिलब्लेंस इचिंग चिलब्लेंस में 4 मेडिसिन है. एब्रोटेनम है, एगैरिकस है, पेट्रोलियम है एंड जिंकम है. लेकिन सब में एक एक वर्ड, दो वर्ड का डिफरेंस है. क्या है? अगर सिर्फ इचिंग चिलब्लेंस आता है तो मेडिसिन इज एब्रोटेनम. एगैरिकस में आप देखोगे वहां पे क्या लिखा हुआ है? चिलब्लेंस दैट इच एंड बर्न इनटॉलरेबली. एगैरिकस में. पेट्रोलियम में क्या सिम्टम है? पेनफुल इचिंग चिलब्लेंस एंड चैप्ड हैंड्स. ये सिम्टम पेट्रोलियम में है. जिंकम में क्या है? चिलब्लेंस, पेनफुल, एग्रेवेशन फ्रॉम रबिंग. ये है जिंकम में. तो एक एक कीवर्ड्स आपको उठा लेना है यहाँ से. अगर एग्रेवेशन फ्रॉम रबिंग हुआ चिलब्लेंस में तो फिर द सिम्टम इज जिंकम, मेडिसिन इज जिंकम. अगर चैप्ड हैंड्स हुआ चिलब्लेंस के साथ देन द मेडिसिन इज पेट्रोलियम. अगर इच एंड बर्न कर रहा है इंटॉलरेबली देन दैट इज एगैरिकस. और सिर्फ इचिंग चिलब्लेंस लिखा है देन दैट इज एब्रोटेनम. दैट्स ऑल. सेकेंड, हेडेक. हेडेक ऑन 7th डे. हेडेक ऑन 7th डे में 4S मेडिसिन है. 4S. द मेडिसिन आर सैंग्यूनेरिया, सबरडिला, साइलिशिया एंड सल्फर. हेडेक के रिलेटेड आप सारे चीज हेडेक्स के पढ़ लोगे. लाइक फॉर एग्जांपल हेडेक आफ्टर सी बाथिंग, हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग, हेडेक ऑन 8th डे, हेडेक ऑन 6th वीक. ऐसे करके जितना भी रिलेटेड होता है, हेडेक आफ्टर टेकिंग कोल्ड, हेडेक ऑन स्टूपिंग, हर चीज आप सारे हेडेक से रिलेटेड सिम्टम्स और उसके बगल बगल में मेडिसिन लिख के एक कंपैरिजन करके आप पढ़ोगे. आपको ज्यादा टाइम तक ये याद रहेगा. नेक्स्ट एग्जांपल डायरिया. डायरिया एक कैटेगरी बनाओ, उसके अंदर सारे सिम्टम्स लिख डालो. डायरिया फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क, डायरिया लाइक स्क्रैम्बल्ड एग, हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, डायरिया फ्रॉम ड्रिंकिंग मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे करके डायरिया कैटेगरी के हर सिम्टम्स लिख के बगल बगल में मेडिसिन लो, कंपैरिजन करके याद कर लो. नंबर 3, प्रैक्टिस ओरिएंटेड. क्लिनिक में आप पेशेंट देख रहे हो या ओपीडीज में पेशेंट देख रहे हो, पेशेंट आपको जितने सिम्टम्स दे रहा है आप सारे सिम्टम्स को अपने एलेंस की नोट में मार्क कर दे रहे हो. पेशेंट ने आपको सिम्टम्स दिया, आपने एलेंस की नोट लिया, उसमें मार्क कर दिया. ये सारे सिम्टम्स जो दिन भर के आपने पेशेंट से कलेक्ट किया, ये सारे सिम्टम्स आप बाद में लेटर ऑन बैठकर इसको याद कर रहे हो. एंड दीज सिम्टम्स विल बी मच ईजियर टू रिमेंबर बिकॉज दीज आर द सिम्टम्स दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इन द पेशेंट टुडे. So this is the third way in which you can study Materia Medica, but this third way is only beneficial if you are seeing patients in OPDs and clinics in huge number. Number 4, MCQ oriented, and this is the most beneficial way of studying Materia Medica. आप क्या करोगे? आप कोई सी भी स्टैंडर्ड MCQ टेक्स्ट बुक लोगे Materia Medica and you start solving MCQs from there.
लाइक आपने पहले एमसीक्यू सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल एक पहला एमसीक्यू सिम्टम है वो सबआइना में मेंशन है, आप एलेंस की नोट खोले, सबआइना में वो सिम्टम जहाँ पे मेंशन है आप कोई एक मार्किंग लगा दिए रेड पेन से या ग्रीन पेन से। सेकेंड आप सिम्टम्स फॉर एग्जांपल जिंकम का मेंशन है, आप जिंकम ओपन किए, वहाँ पे एक मार्किंग लगा दिए, रेड पेन से आपने मार्क कर दिया। थर्ड सिम्टम आपने फिर से लैकेसिस का मिला, आपको लैकेसिस ओपन किए, वो सिम्टम को जाके रेड पेन से मार्क कर दिए। तो ऐसे करके आपको कंटिन्यूसली सॉल्व करना है एमसीक्यू। 10th 11th कुछ एमसीक्यूज के बाद, फॉर एग्जांपल 10th या 11th एमसीक्यू में आपको देखने मिलता है कि एक सिम्टम है जो वापस से सबआइना में मेंशन है, आप फिर से सबआइना ओपन किए, सबआइना ओपन करके वो सिम्टम्स को आप मार्क कर लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ऑलरेडी सिम्टम है जो आपने पहले मार्क करा है। अब क्या हो रहा है कि एक नया सिम्टम आपने यहाँ सबआइना में पढ़ा और पुराना जो सिम्टम मार्क था उसको रिवाइज किए, फिर से वैसे ही आपने फिर एमसीक्यू सॉल्व करते गए, फिर से एक सिम्टम्स मिला जो जिंकम में था, आप फिर से जिंकम का नया सिम्टम्स को मार्क किए और पुराना सिम्टम साइड बाई साइड रिवाइज किए। फिर लैकेसिस में जब आएगा तो लैकेसिस में भी सेम थिंग। ऐसे करते करते आप जब 2000 से 3000 एमसीक्यूज पहुंचोगे तो योर बुक विल स्टार्ट लुकिंग समवट लाइक दिस। योर बुक इज गोना स्टार्ट लुकिंग समवट लाइक दिस। हर जगह रेड पेन से आपको मार्किंग्स मिलेगा। ये मेथड का एक बेनिफिट ये है कि आप पढ़ाई, नया सिम्टम्स भी आप पढ़ रहे हो, रिवीजन भी साथ ब साथ हो रहा है, आपको अलग से रिवीजन का कोई टाइम नहीं निकालना है। सो दिस वॉज द फोर्थ वे यू कैन स्टडी मटेरिया मेडिका। I want you to share with me what difficulties you are facing while preparing for your exams. It can be anything like difficulties in understanding a subject, difficulty in understanding a topic, you cannot score high, you cannot wake up early, just anything. Write it in the comment below and I will try to make a video of it and help you out with that. And also let me know how helpful you found this video. And thanks for watching.